On behalf of Republican Day today, I put a two words to you on behalf of KGF citizens and ex-BGML employees. सर, आप जानते हैं यहाँ पे बीजेएमएल का नौकर कितने तक सफर हो रहे हैं, क्या क्या सफर हो रहे हैं, छोटी मोटी चीजें, ज्यादा बड़ा नहीं है सर। लेकिन हमारे पास वही क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं कि सरकार के पास है और सुप्रीम कोर्ट में है। मैं आपके विनती करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं, ये जो बीजीएमएल एक्स एम्प्लॉइज के लिए जो भी मिलना चाहिए एज पर रूल्स, कानून के मुताबिक, कानून को ओवरटुक करके कुछ नहीं चाहिए। ये आपसे विनती करता हूं कि जब की जनता की और एक्स बीजीएमएल पब्लिक की एक्स एम्प्लॉइज की तरफ से जो हो सके जल्दी हो तो अच्छा रहेगा सर। और सरकार को रेकमेंड कीजिए कानून के तौर पर, बिगर कानून के तौर पर हम कुछ नहीं मांग रहे, ये आपसे विनती करते हैं। ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಮತ್ತು BGML ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಹಿರಿಯ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನದ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ। ಮೊದಲಿಗೆ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಮಗೊಂದು ಸಂವಿಧಾನನ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ದಿನ 26 ಜನವರಿ। ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾವು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಇಂದು ಕೂಡ ಅದೇ ಆಚರಣೆಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ। ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ, ನಮ್ಮ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ರೂಲ್ ಇದ್ದಾಗ 1935ರಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಅದು ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು। ಅದನ್ನ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಾಹೇಬರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಡೀನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ರಚನಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ರಚಿಸಿ ಸಂವಿಧಾನ ರಚನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ 26 ಜನವರಿಯಂದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ। ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈಗ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನ ಸಂವಿಧಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೀರ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪಿದಂತ ಮ್ಯಾಟ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ದಿನ ಕೂಡ ಇವತ್ತು। ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೈತರು ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಒಂದು ವೇದವಾಕ್ಯನ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ಒಂದು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನಾದಂತ ಕರ್ತವ್ಯ। ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ, ಅವರ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನ, ಅವರ ತತ್ವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಚಿತ್ರಗಳಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಮಿ, ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಏನೇನಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತ ದಿನ। ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಯುದ್ಧಗಳು ಇದು ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ। ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಮರೆತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ನಿರತವಾಗಿದೆ। ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನೆಲೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿರ್ತಂಥವ್ರನ್ನ ಅವ್ರ ಸೇವೆನ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಹೌದು ನನ್ನ ಈ ತರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಭಾವನೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ರೈತರಿಗೆಲ್ಲ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವನ। ಹಂಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾವು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸಂವಿಧಾನ ಪ್ರಕಾರ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ। ये क्राउड जो है वो एक्स आर्मी वाले या जवान के लिए है, वो बहुत हिंदी अच्छा जानते हैं। क्योंकि भाषा कोई हमारे आपके बीच में कुछ नहीं होनी चाहिए। आपको मेरी एक्सप्रेशन समझ में आनी चाहिए, आपका मेरे को आनी चाहिए। दैट इज द मेजर थिंग। यू शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग व्हाट इज देयर। इफ यू डोंट नो आई विल ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश, बट द थिंग इज दैट मैं हिंदी में बोलता हूँ ताकि कुछ मोटिवेशन हो जाए। आदरणीय रमेश बाबू साहब, हमारे वरिष्ठ जो सीनियर हमारे ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं, सारे हिपी फुर्रे फॉर द आर्मी मैन्स, हिपी फुर्रे, हिपी फुर्रे। ओके, ऑल दिस पीपल्स, यंग सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हमारे नौजवान जो भारत के
राष्ट्र को बनाएंगे महाराष्ट्र, दैट महाराष्ट्र स्टेट नहीं, राष्ट्र वाला महाराष्ट्र। ओके, हमारा देश आज के डेट में किसी से कम नहीं है, चाहे वो इकोनॉमी में हो, चाहे डिफेंस में हो, चाहे दिमाग में हो, पढ़ाई लिखाई में हो। आज भी देश के 5 वर्ल्ड के 5 जो देश हैं उसमें 30% इंटेलेक्चुअल्स इंडियन ही है। वो हमारा इसमें कमी नहीं है, हमारा पुरखों से हड़प्पा मोहनजोदाड़ो से ही हम लोग सिविलाइजेशन देते, हम लोग सिविलाइजेशन का ज्ञान देते हैं। हमारा देश ज्ञानों का देश कहते थे, बाद में कुछ हुआ, कुछ देर हम लोग पिछड़ गए, लेकिन फिर हम लोग अग्रसित हैं, हम लोग बहुत अग्रसित हैं। तो भाइयों और बहनों तो नहीं है, भाइयों और दोस्तों, बच्चों आज हम लोग 74वां 74th रिपब्लिक डे मना रहे हैं। रिपब्लिक मीन्स होता है हम लोग गणतंत्र हो गया, हम लोग रिपब्लिक हो गया। नाउ वी हैव गॉट ओन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच वी हैव टू फॉलो। हम लोग को जो गणतंत्र, जो भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन लिख के दिया, उसको पास करवाया पार्लियामेंट से, हम लोग को इक्विटी एवरीथिंग का पावर दिया, हमको सोचने का पावर दिया, हमको इम्प्लीमेंट करने का पावर दिया, हमको एक सिटीजन का राइट, उसी तरह हमको ड्यूटी भी दिया। ऐसा नहीं कि केवल राइट दिया, हमारे पास ड्यूटी भी दिया कि हम लोग संविधान की रक्षा कैसे करें। एज ए गुड सिटीजन हाउ वी कैन डू अ गुड फॉर दिस इंडिया। ओके, तो अभी क्या है, मैं अपने ऑफिस में भी बोल रहा था कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है वो आर्मी, बीएसएफ, ये जो जवान जो बॉर्डर्स पे रहते हैं वो होता है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इनलैंड पुलिस फोर्सेस होती है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हम सिटीजन हैं, हमको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में भी हमको काम करना है, तभी तो देश बढ़ेगा। बूंद बूंद से ही तालाब बनता है। ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई आएगा और आपको बदल देगा, आपके बीच में ही हम लोग को ऐसे काम करना है सोसाइटी के लिए कि कोई उंगली नहीं उठाए, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, आपकी हेल्प अपने खुद को करनी है। खुद को इतना स्ट्रांग कर कि आपको कोई बाहर वाला कुछ नहीं कर पाए। ये हमारा जो केजीएफ शहर है, ये एक समझ लीजिए कि एक अमलगेशन है, मतलब कि ये मिनी इंडिया है। हर जगह के लोग हैं यहाँ पे, मैं देखता हूँ मलयाली भी हैं, तमिलियन भी हैं, कन्नड़ा भी हैं, तेलुगु भी हैं, हिंदी वाले भी बहुत हैं। देखिए वो राजस्थान से राजस्थानी भी हैं, इसमें और लैंग्वेज का लिखा सर इसमें। हाँ नहीं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हर तरह का ये मिनी इंडिया है। इसको आप लोग संभालना है, आपको इसको संभाल के रखना है। ये धरोहर जो हेरिटेज है, उस हेरिटेज को आपको रेस्पेक्ट करके प्रिजर्व करना है। प्रिजर्व करके आपको लोगों को बीच में एक संदेश देना है कि देखो हम कैसे हैं, हमारा मोरल कैसा है। और इसमें ये पूर्व सैनिक जो है, एक्स सर्विसमैन, बहुत बड़ा साथ देते हैं, क्योंकि ये फुली डिसिप्लिन्ड लाइफ होता है इनका। इनसे सीखना है डिसिप्लिन, कि कैसे डिसिप्लिन को रखते हैं। ये जब तक नौकरी में होते हैं, ये लोग की एक सिस्टम क्रिएट हो जाती है जिसमें ये लोग डिसिप्लिन ड्राइव चलते हैं। आज भी मेरे को बहुत लोग मिलते हैं, हम जाते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, तो देखते हैं कि मॉर्निंग वॉकर्स में 80% एक्स आर्मी में नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको आदत हो गई सुबह उठ के जॉगिंग करने का, एक्सरसाइज करने का। तो ये एक डिसिप्लिन लाइफ है, इनसे नॉर्मल लोगों को, बच्चों को सीखना चाहिए। और आप लोग अग्निवीर में होने जा रहे हैं, बहुत अच्छा है, आपको मुबारक हो फॉर योर फ्यूचर। यू विल बी इंडक्टेड इन इंडियन आर्मी, नेवी, एनीवेयर। You will be serving in this country. You are a precious gem for this motherland. Okay, all the people are sleeping due to this army man. We are safe here. We are going on the road due to this security persons only. Otherwise, there will be anarchy. You have seen Afghanistan is there, Cuba is there, Argentina, everywhere you will find where there is a no policing is there, anarchy is there. So
मैं तो बोलूँगा सबको, पुराने ये हमारा जो पीछे जो आदमी हैं जिनके लिए ये बनाया गया है, ये जहाँ भी हों, इनका जो दिया हुआ चीज़ है हम लोगों को, वो कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारा जो इनका बलिदान, देश के प्रति बलिदान आज भी करने को अगर कहा जाए तो ये लोग पहले आगे खड़े हो जाएंगे। हम लोगों को, सिटीजन को बाद में आना पड़ेगा। पहले ये लोग अपने घर परिवार समाज सब छोड़ के आपकी सेवा के लिए आगे आते हैं। इनको ध्यान में रखते हुए हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि हम लोग इनको क्या दे सकते हैं। इनका नाम जो है, जो इतना नाम हुआ है, वो खराब नहीं हो। इसीलिए तो लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान के बारे में बोला कि हमारे 2 आर्मी है, एक जवान एक किसान। किसान जो होता है वो जवान को पेट भरता है तभी तो वो आगे लड़ता है। तो ये जमीन में लड़ रहा है, वो बॉर्डर पे लड़ रहा है। इसीलिए उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। किसान को ऐड किया। किसान जो एकदम तबके में था, जिसको लोग कोई नहीं जानते थे। आज भी क्या होता है, इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ सब लोग देखते हैं, किसान की तरफ कोई नहीं देखता, क्योंकि वो टैक्स बेचारा नहीं देता। यहाँ तो टैक्स का वैल्यू है, लेकिन उसका वैल्यू क्या है? हमारा अन्नदाता है, वो हमको अन्न देता है। वो अगर वो अन्न नहीं दे तो हमारा इतना पैसा क्या करेंगे? नोट खाएगा क्या कोई? खाने के लिए तो चावल ही खाएगा, नोट कोई खाएगा क्या? हाँ, हाँ, कोई भी आदमी है, वो तो किसान को हमको देना है वैल्यू। और उसके साथ साथ हम जब तक हमारे पीछे कोई बंदूक लगा के कहेगा तो हमको खाना खाया जाएगा क्या? इसीलिए उसके लिए फिर जमाना गया। हम लोग तो जो भी काम करते हैं, फैसिलिटेट टू देम, ट्राई टू मेक अ सोसाइटी विच इज हम्बल, respect to each other's feelings, try to help them in their problems। जब भी प्रॉब्लम हो सब समाज उठ के खड़ा हो जाए। कहा जाता है कि एक आदमी की पॉपुलैरिटी जब होती है जब वो मर जाता है और उसकी अर्थी जाती है। एक अर्थी 100 वाहन में जाता है, उसके पीछे कोई नहीं रहता, एक ड्राइवर रहता है, उसका घर वाला रहता है। और एक आदमी रोड पे जाता है, उसके पीछे हजारों आदमी जाते हैं। उसकी कमाई वही है। उसका जो कमाई है वो पैसा नहीं कमाया है, वो उसने लोगों को कमाया है। आप कोशिश करिए कि लोग कमाइए, पैसा तो हमेशा कमा लेंगे, कभी भी लोग कमाइए। और ये मत देखिए कि कौन है सामने वाला, आपका ही भाई है। हो सकता है दूसरी जगह से आया हो, हम लोग भी दूसरी जगह से, मैं तो यहाँ से नहीं हूँ, काम करूंगा यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन आप लोग तो साथ में ही रहेंगे। हो सकता है कितना दिन तक रहेंगे भगवान जाने, लेकिन आप लोग एक दूसरे एक अच्छे समाज का नींव रखिए। चोरी चकारी उल्टा सीधा धंधा जो है, क्योंकि केजीएफ मेरे आने से पहले मेरे को बहुत इनपुट दिया गया, ऐसा शहर है वैसा शहर है, फिल्म तो और बर्बाद कर दिया है ना। यहाँ का जो थोड़ा मोड़ा नाम था वो फिल्म ने पूरी तरीका से नाश कर दिया उसका, क्योंकि लोग को जो दिखता है वही बिकता है। दिख रहा है सिनेमा में, अरे साले सब बंदूक लेके घूम रहे गुंडा, मैं तो यहाँ गुंडा देखा ही नहीं। आपको ये इंटेंशन बना के रखना है कि हमारा जो नाम खराब हुआ है, हम लोग अपने अच्छे कर्मों से उस नाम को पाट दें। आज देखिए, आज के डेट में इन्वेस्टर्स कहाँ जाते हैं? 3 ही स्टेट को चुनते हैं, एक कर्नाटका को चुनते हैं, एक गुजरात को चुनते हैं, एक हरियाणा को चुनते हैं। हरियाणा पंजाब वाला पोर्शन, पंजाब तो खत्म हो गया ना, तो उड़ता पंजाब हो गया, ठीक है। तो ये 3 ही स्टेट को चुनते हैं। 3 स्टेट को क्यों चुनते हैं? सोचते हैं यहाँ जाऊंगा तो सेफ रहूंगा, हमारी पैसा जो है वो सेफ रहेगी, हमारी फैमिली सेफ रहेगी। सेफ्टी सबसे पहले। देखिए, आदमी जब प्रॉब्लम में आता है तो 3 ही चीज सोचता है। सबसे पहले सोचता है अपने बारे में, फिर अपने सोचता है फैमिली के बारे में, और फिर सोचता है अपने धन के बारे में। लास्ट धन है, देख लीजिए, लास्ट धन है। आप नहीं रहिएगा, आपकी फैमिली का कोई वैल्यू नहीं है। आप हैं तभी आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली है तभी आपका धन है। अगर धन है भी और आपकी फैमिली और आप नहीं है तो कोई मतलब नहीं है उसका। अभी कुछ दिन पहले पेपर में पढ़ा
कि दिल्ली में एक भिखारी मर गया, उसके बेड के नीचे से 3 पासबुक मिला, उसमें 70 लाख रुपए थे। क्या मतलब है उसका? क्या यूज है? क्या उसका यूज है? वो धन का क्या हुआ? बैंक वाला ले लिया, खत्म हो गया, सरकार के तिजोरी में चली गई। वही एक आदमी एकदम निर्धन है, लेकिन अपना वो पैसा को ह्यूमैनिटी, अपने परिवार, हम नहीं कहते हैं कि लोगों के बीच में बांटिए पैसे को, लेकिन आपका जो धन है वो आपका विचार है, कैसा आप विचार रखते हैं। सबसे बड़ा धन विचार है, समझे? विचार अच्छे होंगे, बहुत पैसा कमा लेंगे, हर स्टेज में पैसा कमा सकते हैं। अडानी का देख रहे थे, बोल रहा था मेरे को और पहले बिजनेस करना चाहिए था, कि पेट में था तभी से कर लेता। हाँ, उसका अंत है क्या? वो बोल रहा है वो 45 साल में वो बिजनेस स्टार्ट किया, बोलता है मैं और पहले से करना चाहिए था। अरे पेट में माँ का था तभी से कर लेता और पैसा कमा लेता, क्या फर्क पड़ता उससे देश को? हाँ, एक 25 साल में अगर आर्मी में बच्चा चल जाता, वो ज्यादा धन कमा रहा है, उसको 16,000, 25,000, 30,000 रुपए सैलरी मिलना मतलब नहीं है, लेकिन वो कम से कम अपने सामने 1 करोड़ आदमी को पीछे रखे हुए जिसकी वो रक्षा कर रहा है। एक अच्छा अधिकारी अगर 50 आदमी की सेवा करवा रहा है, काम कर रहा है, वो उससे अच्छा है। उसका करोड़ रुपया धन रख के क्या फायदा किसी को? ठीक है, इसी तरह मैं कहूंगा सबके लिए, आप लोग KGF का नाम ऊपर करिए। मैं हर अच्छे काम के लिए साथ में हूं, बुरे काम करने के लिए आइएगा, मैं अपने रूम में घुसने नहीं दूंगा। ठीक है, अगर मेरे को जानते हैं, मेरे को कुछ लोग मेरे को जानते हैं इस टाइप का, मैं गलत आदमी, हर आदमी से बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे रूम में आएगा तो मैं किसी से बात नहीं करूंगा, हर आदमी से बात करता हूँ। मेरे को आप एक बार बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसीलिए आप कोई भी अच्छे काम के लिए आएंगे, पब्लिक के लिए काम करने आएंगे, सोसाइटी के लिए काम करने आएंगे, अपने लिए भी अच्छे काम के लिए आएंगे, जो लीगल है मैं उसमें हमेशा साथ हूँ। ठीक है, इलीगल के लिए कृपया मेरे पास ना आए। हाँ, इलीगल के लिए नहीं आए। और मैं यंगस्टर से कहूँगा, सबसे बड़ी बात मैं सुनने को आया था, मैं वेंकट के पास भी गया था, तो बोल रहा था कि मेरे को खबर आता है कि यहाँ के लोग बहुत ड्रग्स लेते हैं। आप लोग इस चक्कर में मत पड़ो। पंजाब की हालत देख रहे हो, इतना कर्ज हो गया है कि वो भीख मांग रहा है उसका चीफ मिनिस्टर, केवल अपने लोगों। पंजाब सबसे ज्यादा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, इंडस्ट्रीज था उसमें, उसके पास सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर था। आज पूरी कहानी बदल गई है, क्योंकि उसकी यंगस्टर दूसरे रास्ते पे पकड़ लिए, गांजा पी के टन है। क्या होगा? हमारा असली धन तो तुम लोग हो, यंगस्टर, समझे? असली धन हो, हम लोग को पैसा नहीं चाहिए। तुम लोग अच्छे काम करोगे, ऑटोमेटिकली हम लोग को पैसा मिल जाएगा। अरे तुम तो टैक्स दोगे ना, अच्छा कमाओगे तो हमरा असली मिल जाएगा। हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम बेरोजगार रोड पे घूमोगे तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का होता है। अगर तुम शैतान बन जाओगे तो किस माँ बाप को अच्छा लगेगा? किसी के बच्चे, कोई बाप चाहता है कि उसका बेटा बदमाश हो जाए? कोई नहीं चाहता। इसीलिए अपने घर का, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम ऊंचा करिए, अच्छे काम करिए, सब लोग आपका सहायता देंगे, सब लोग सहायता देंगे। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ओके, ಮಿಲಿಟರಿ